بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جماعت نحم کی اردو کی کتاب کا سبق نمبر 3 کاہلی پڑھیں گے۔ کاہلی سر سید احمد خان نے لکھا ہے۔ کاہلی کے مصنف سر سید احمد خان ہیں۔ ہم اس کے مشکل الفاظ اور معنی دیکھنے سے پہلے سر سید احمد خان کے بارے میں کچھ جانیں گے۔ سر سید احمد خان ہمارے ایک ایسے رہنما ہیں جنہوں نے اردو زبان کو ایک اعلیٰ و رفیع مقام عطا کیا۔ چونکہ سر سید کے دور میں برصغیر پاک و ہند میں اردو زبان ایک ایسی زبان تھی جس میں بہت بھاری بھرکم اور مشکل الفاظ کو موضوع سخن بنایا جاتا۔ کسی بھی تحریر میں وہ غزل ہو، نظم ہو یا نثر ہو، بہت مشکل الفاظ استعمال کیے جاتے جو کہ عام قاری کے لیے، ایک عام پڑھنے والے کے لیے بہت مشکل ہوتے اور اس کو اس تحریر کی سمجھ ہی نہ آتی۔ اور اصل میں ادب تخلیق کرنے کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسانوں میں شعور اور آگاہی پیدا کی جائے اور ان کو ان کی معاشرت اور ان کی روایات کے بارے میں بتایا جائے۔ تو سر سید احمد خان نے اس وقت یہ جانا کہ چونکہ برصغیر پاک و ہند میں مسلمان اس وقت غفلت کی نیند سو رہے تھے، ان کے پاس کوئی بھی ایسی تحریک نہیں تھی، کوئی بھی ایسی چیز جو ان کے اندر جذبہ بیدار کرتی اور ان کو ان کی غفلت کی نیند سے جگاتی اور ان کے مقام سے آگاہ کرتی۔ سر سید احمد خان نے ایک ایسی تحریک چلائی جس کے ذریعے انہوں نے کچھ ایسے لکھنے والوں کو اکٹھا کیا جن سے کہا گیا کہ بہت آسان اور سلیس زبان میں مختلف زندگی کے مختلف موضوعات کو جو ہے وہ لکھا جائے اور وہ اتنی آسان اور سادہ زبان استعمال کی جائے کہ عام پڑھنے والے کو اس کی سمجھ آئے۔ جب ہم کوئی اخلاقی یا مقصدی اصلاحی درس دیں کسی تحریر کے ذریعے تو عام پڑھنے والے کو اس کی سمجھ آ سکے، وہ اس سے سبق حاصل کریں، اس میں شعور اور آگاہی آئے۔ مطلب اردو زبان کی ترقی، اس کی اصلاح کے لیے سر سید احمد خان نے بہت اہم کردار ادا کیا اور انہوں نے چونکہ اس کو آسان زبان کے طور پر متعارف کروایا اور اس میں بہت سے جدید علوم کے بارے میں مذہبی اور معاشرتی اصلاحی سطح پر ہر طرح کے مضمون لکھے اور جو بہت آسان زبان میں لکھے تاکہ عام قاری کو سمجھ آ سکے۔ یہ سر سید کا ایک بہت اہم کارنامہ تھا۔ سر سید کے دور میں ہی اردو زبان میں ہر طرح کے مضامین لکھنے کا رواج ڈالا گیا، مطلب کہ مختلف موضوعات کو موضوع سخن بنایا گیا۔ اب ہم آپ کا کاہلی سبق پڑھیں گے۔ چونکہ کاہلی سبق بھی سر سید احمد خان نے ایک مقصد کے تحت لکھا۔ سر سید احمد خان نے جو تحریک چلائی وہ ایک مقصد کے تحت چلائی تھی کہ آسان زبان میں چیز تحریر کی جائے تاکہ عام لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ ہم انہیں کیا میسج دینے جا رہے ہیں۔ اب کاہلی میں سر سید احمد خان ہمیں ایک میسج دے رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں آسان زبان استعمال کی گئی ہے۔ جو ایک دو مشکل الفاظ ہیں وہ آپ کو سامنے بورڈ پہ لکھے ہوئے نظر آ جائیں گے۔ آپ کو بہت آسانی سے کاہلی کا جو اصل مقصد لکھنے کا ہے وہ معلوم ہو جائے گا۔ کاہلی سبق پڑھنے سے پہلے ہم مشکل الفاظ دیکھ لیں گے تاکہ آپ کے لیے مفہوم جو ہے وہ بہت ہی سہل ہو جائے۔ الفاظ معنی ہے کاہلی مطلب ہے سستی، دلی قوہ دل کی قوتیں۔ اب دلی قوہ کیا ہے؟ دلی قوہ ہے دل کی قوتیں، اور دل کی قوتیں کیا ہے؟ چونکہ دل ہمارا مرکز ہے اور یہ ہماری پوری باڈی کے آرگنز کو کنٹرول کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ دل جو ہے یہ اگر اس کی قوتیں طاقتیں برقرار ہیں تو یہ اگر قوہ ہے دل کی قوتیں برقرار ہیں تو ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دلی قوہ سے مراد ہے دل کی قوتیں۔ عارضی مطلب ہے وقتی، کچھ دیر کے لیے۔ خصلت سے مراد ہے ہماری فطرت یا عادت، ایسی بات جو ہماری فطرت میں راست ہو گئی ہو، جو ہماری فطرت کا حصہ ہو۔ مائل ہونا، متوجہ ہونا، کسی کی طرف راغب ہونا یا متوجہ ہونا۔ وضاحت مہذب، مشابہت ملتی جلتی، ایک دوسرے سے مماثلت رکھتی ہے۔ مستعدی چستی، کمار بازی جوا کھیلنا۔ چستی مراد ہے پھرتی یا ہوشیاری۔ اوقات بسر کرنا، اوقات کیا ہوتے ہیں؟ زندگی کے روز کے معمولات۔ زندگی بسر کرنا مطلب زندگی گزارنا، بسر کرنا سے مراد ہے گزارنا۔ وحشی جنگلی یا حیوان۔ تحریک کسی کو تحریک دینا، تحریک کا مطلب ہے حرکت دینا، اس میں جنبش پیدا کرنا۔ جھنجھوڑنا، چندہ تھوڑی سی۔ ہوہر
बद सलीका, रफा होना, दूर होना, तवक्को, उम्मीद, ला खराज ना देने वाली। ठीक है, मतलब ये एक जो बड़े सगीर पाको हिंद में रहते थे, एक वो जो बड़े सगीर पाको हिंद में बाहर से आए थे। ठीक है, एक मुकामी लोग, एक वो जो बाहर से आए थे। अब सर सैयद अहमद खान ने जो अपना ये मजमून लिखा काहिली, सर सैयद अहमद खान का सिर्फ काहिली मजमून ही नहीं बल्कि सर सैयद अहमद खान ने जो भी लिखा वो एक मकसद के तहत लिखा। उनका अदब बराए मकसद था, हर चीज़ में एक मकसद पोशीदा था। काहिली जो मजमून हम पढ़ेंगे ये मैं आपके साथ साथ पढ़ती हूँ, आपको तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक करवाती जाऊँगी और आपको बताऊँगी कि काहिली में क्या मैसेज दिया गया है, क्या पैगाम दिया गया है। काहिली एक ऐसा लफ्ज़ है जिसके मायने समझने में लोग गलती करते हैं। लोग ये समझते हैं कि हाथ मुँह से मेहनत ना करना या किसी काम को बहुत आहिस्ता से करना या उसके काम में रुकावट डाल के करना, कुछ देर से करना काहिली है। सर सैयद अहमद खान कहते हैं ये काहिली की एक किस्म है कि किसी काम को लेट करना, उसको बहुत आहिस्ते से करना या उसको करने में हीलो हुज्जत करना, बहाने बनाना। वो कहते हैं ये काहिली की एक किस्म है, जबकि काहिली की असल जड़, काहिली की असल किस्म ये है कि हमारी जो दिल की कुव्वतें हैं, हमारे दिली कुव्वा है, दिल की ताकतें हैं, हम उनसे काम ना लें, उनको बेकार छोड़ दें। असल में काहिली ये है। अब आपको इसका मफहूम ये समझाऊंगी कि जब हम अपनी दिल की कुव्वतों को, ताकतों को बेकार छोड़ देंगे तो हम काहिल और सुस्त हो जाएंगे। क्योंकि जब हम दिल की ताकतों को इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपने दिली कुव्वा को बेकार छोड़ देंगे। हम अपनी मतलब ये है कि हम अपनी दिली कुव्वा, हमारी दिली कुव्वा क्या है? दिल जो हमारी सारी बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, हमारे सोचने समझने परखने की सलाहियत है। ठीक है, वो हमारी दिली कुव्वा है। तो अगर हम अपने सोचने समझने और परखने की सलाहियतों को बेकार छोड़ देंगे तो हम में और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रहेगा। जानवरों में और इंसानों में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि इंसान को अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, सोचने को, कोई भी काम करने से पहले सोचता, समझता, परखता है, उसके लिए कोशिश करता है। अल्लाह ताला ने चूँकि इंसान को तस्खीर कायनात के लिए बनाया, मुसख्खर कर दी कायनात उसके लिए। तो जब हम अपने दिली कुव्वा को बरूकार लाएंगे तो ही हम अपना कोई मकसद हासिल कर पाएंगे। जब हम अपनी सोचने समझने परखने की सलाहियतों को बेकार छोड़ देंगे, अपने दिली कुव्वा को बेकार छोड़ देंगे, उनको हरकत में नहीं लाएंगे, अपनी सलाहियतों को बरूकार नहीं लाएंगे, तो हम इन बहसियत इंसान और जानवर कोई फ़र्क नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जानवरों का मकसद सिर्फ खाना पीना और ज़िंदगी गुजारना है, जबकि इंसान का मकसद सिर्फ खाना पीना और महज ज़िंदगी के दिन पूरे करना नहीं है, बल्कि इंसान को भेजा गया है दुनिया में कायनात को तस्खीर करने के लिए, इस यहाँ पे मौजूद चीज़ों के बारे में सोचने के लिए, समझने के लिए, उनको परखने के लिए। तो इंसान चूँकि अशरफुल मखलूक़ात है, वो अशरफुल मखलूक़ात है, तो उसको अपने दिली कुव्वा को बेकार बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। अगर वो अपने दिली कुव्वा को, अपने सोचने समझने परखने की सलाहियतों को बेकार छोड़ देता है तो आप समझिए कि इंसान और हैवान एक बराबर हो जाते हैं। अब जब हम अपनी दिली कुव्वा को छोड़ देते हैं, अपनी सलाहियतों को बेकार नहीं लाते, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल नहीं करते, उनको जंगा रहने देते हैं, तो क्या होता है? इंसान फारिग रहता है। फर्ज करें एक तो शख्स वो है जिसको अपनी ज़िंदगी गुजारने की बुनियादी सहूलतें मुयस्सर नहीं है, उसको ना चाहते हुए भी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने हाथ पाँव को हिलाना पड़ेगा। जब वो अपने हाथ पाँव को हिलाता है तो वो बेकार काम ही बैठता है, वो मेहनत कश होता है, वो मेहनत से रोज़ी कमाता है, वो सुस्ती और काहली अमूमन नहीं दिखाता, क्योंकि उसे अपनी ज़िंदगी के मामूलात के लिए बुनियादी ज़रूरियात मुहैया करनी होती हैं। लेकिन एक ऐसा इंसान जिसके पास ज़िंदगी की बुनियादी ज़रूरियात मौजूद हैं, वाफर आमदनी है, ज़िंदगी की सहूलियात मौजूद हैं, और अगर वो बेकार पड़ा रहता है तो वो अपने दिली कुव्वा को हरकत में नहीं लाता, तो वो बिल्कुल एक हैवान की तरह है। क्योंकि अगर जो इसके पास ज़िंदगी की बुनियादी सहूलतें हैं लेकिन वो सिर्फ खाता पीता और दिन गुजार रहा है, वो अपने सोचने समझने की सलाहियतों को बरूकार नहीं लाता, चीज़ों को नहीं परखता, तो वो बिल्कुल एक हैवान की मानद है। क्योंकि कहा जाता है कि खाली ज़हन इंसान शैतान की तरह होता है, खाली रहना, फारिग रहना शैतान का काम है।
इंसान का काम क्या है? अपनी सलाहियतों को बरोए कार लाए। उसके पास अगरचे बुनियादी सहूलतें हैं तो वो अपने हाथों से मेहनत करे, अपने दिमाग से सोचने समझने की सलाहियतों को बरोए कार लाए और सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करे। दुनिया में कायनात को देखे, परखे, इसमें चीज़ों को तस्खीर करे। ठीक है, इसी सर सैयद अहमद खान ये कहना चाह रहे हैं, चूँकि सर सैयद अहमद खान के दौर में मुसलमान जो है वो बिल्कुल पसमानदा ज़िंदगी गुजार रहे थे, मुसलमान तालीम हासिल नहीं करते थे, अमूमन मुसलमान आला ओहदों पर भी फायज नहीं थे, बहुत छोटी मोटी नौकरियां करते थे। चूँकि मुसलमान वहाँ पर एक अक़लियत के तौर पे थे, हिंदू वहाँ पर अक्सरियत में थे और हिंदू और मुसलमान पर चूँकि अंग्रेज़ हुकूमत करते थे और अंग्रेज़ जो है वो हिंदुओं को मुसलमानों पर तरजीह देते थे, क्योंकि मुसलमानों ने एक बहुत शानदार मुस्तकबिल देखा था, उन्होंने मुसलमानों का एक शानदार दौर देखा था। मुसलमानों ने बड़े सगीर पाक व हिंद में कई सौ साल हुकूमत की थी। मुसलमान बहुत जरी, निडर, बहादुर, मेहनत कश थे और बहुत जिद्दोजहद करने वाले थे, इसलिए उन्होंने कई सौ साल यहाँ पर हुकूमत की थी। तो अंग्रेज़ और हिंदू ये चाहते थे कि मुसलमान सोए रहे, ख्वाब गफलत में पड़े रहें, या अपने दिली कुआ को बेकार पड़ा रहने दें, ना ये सोचें, ना ये समझें, ना इनको किसी अच्छी बात का पता चले, ना ही अच्छी जॉब पर आए, ना ही अच्छे अदारों में आए, ये बेकार पड़े रहें और ये गफलत की नींद में सोए रहें, ये महकूम रहें, हम इन पर हाकिम बनकर आएँ, हम इनसे तमाम काम करवाएं, हम एक आसूदा ज़िंदगी गुजारें और ये महकूम बनकर तरक्की पजीर ही रहें। तो उस दौर में सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को जगाने के लिए आसान ज़बान में मुख्तलिफ किस्म के मज़ामीन लिखे, उनमें मुसलमानों को मैसेज दिया, मुसलमानों को ये पैगाम दिया कि उठें, अपनी गफलत की नींद से जागें। इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, इंसान का काम है चीज़ों को परखना, सोचना, समझना, उसको अपनी सलाहियतों को बेकार नहीं छोड़ना चाहिए, उनको बरोए कार लाना चाहिए, उनको इस्तेमाल में लाना चाहिए। आप उठें, सोचें, समझें, अपने हाथ पैर हिलाएं, मेहनत करें, कोशिश करें, उसके बाद जब आप मुकाम हासिल करेंगे, जो आप कामयाबी हासिल करेंगे, वो सिर्फ ना आपके लिए होगी बल्कि वो आप एक मुआशरे के लिए इज्तिमाई मकसद की कामयाबी का बायस बनेगा। आप उससे सिर्फ आपकी ज़ात को फ़ायदा नहीं पहुंचेगा बल्कि एक पूरा तबका उससे फ़ायदा हासिल करेगा। और जब हम अपने मुआशरे के लिए काम करेंगे तो हम एक तहजीब याफ्ता कौम बनकर उभरेंगे। तो चूँकि मुसलमान गफलत की नींद सोए हुए थे, वो समझते थे कि हम जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमारे पास रोज़गार नहीं है, हमारे पास मौके नहीं हैं, तो बस ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहे। सर सैयद अहमद खान ने ये मज़मून लिखा और मुसलमानों को ये मैसेज देने की कोशिश की, मुसलमानों को और एक आम आदमी के लिए भी ये एक मैसेज है कि अगर आपके पास मौके नहीं हैं तो आप ये सोचें कि आपके पास वो मौके क्यों नहीं है, आप में ऐसी क्या कमी है, वो क्या ज़राए हैं जो आपको मुयस्सर नहीं है और आप अपनी ज़िंदगी के मकसद को हासिल करने में नाकाम हैं। उठें, सोचें, समझें, अपनी ताकतों को, अपनी कुव्वतों को बरोए कार लाएं। जब आप सोचें और समझेंगे तो आपको रास्ते नजर आएंगे, जब आपको रास्ते मिलेंगे तो आपको आपके अंदर काम करने का जज्बा पैदा होगा, आप अपने हाथ पैर दिमाग की सलाहियतों को बरोए कार लाएंगे तो आप कामयाबी की तरफ गामजन होंगे। इसलिए सर सैयद अहमद खान ने उस वक्त मुसलमानों को कहा कि आप ख्वाब गफलत से जागें, काहली को छोड़ें, सुस्ती को छोड़ें। सुस्ती जो है, आपने अपनी सलाहियतों को दबा दिया है, उनको सुला दिया है, अपनी सलाहियतों को बेदार करें, सुस्ती का लिबादा उतार दें। अब आपने जागना है, आपने मेहनत करनी है। असल में उन्होंने मैसेज दिया है कि जब तक कोई कौम, कोई इनफरादी तौर पर फर्द और इज्तिमाई तौर पर कौम जब तक मेहनत नहीं करेगी वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। जब तक आप अपने हाथ पैर नहीं हिलाएंगे, कोशिश नहीं करेंगे, जब तक आप जिद्दोजहद नहीं करेंगे, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप अपनी कोशिश और जिद्दोजहद से अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतर ज़िंदगी बना सकते हैं, एक आला और अरफा मुकाम हासिल कर सकते हैं। एक आम आदमी मेहनत और कोशिश से बहुत आला मुकाम हासिल कर सकता है। यही इस मज़मून में कायरी में सर सैयद अहमद खान ने बयान करने की कोशिश की कि उठें, अपने दिली कुआ को बेदार करें, मेहनत करें और सोचें कि आपको वो सहूलियत ज़राए क्यों मुयस्सर नहीं है, आप उनके लिए कोशिश करें और अपने आप को जगाएं। सर सैयद अहमद खान का इस मज़मून को बहुत आसान लफ्ज़ों में उन्होंने बयान किया और फिर उन्होंने कहा कि जब हम अपनी इन सलाहियतों को बरोए कार नहीं लाते तो हम क्या बनते हैं, हम बिल्कुल वहशी बन जाते हैं, हम बद तहजीब कौम बन जाते हैं। उस वक्त के मुसलमान जो थे उनकी माशरत जो है वो बहुत बिगाड़ और इंतशार का शिकार थी और मुसलमान बहुत ही बद तहजीब कौम बन गए थे, क्योंकि
पास एक जीने का कोई मकसद नहीं था और वो बेकार पड़े रहते थे। और जब आप बेकार रहते हैं तो आपके पास बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी का ढांचा मुकम्मल तबाह हो जाता है, सहूलियात नहीं रहती। तो क्या होता है, आप लड़ते झगड़ते हैं, गुस्से में रहते हैं, आपका चूँकि मेयार ज़िंदगी पस्त होता है तो आप में इखलाकी और माशरती बुराइयाँ पैदा हो जाती हैं। इसी तरह उस वक्त मुसलमानों में बहुत इखलाकी और माशरती बुराइयाँ थी, तो उन्होंने कहा कि उठे, जब हम बेकार रहते हैं तो हम इन माशरती और इखलाकी बुराइयों में पड़ जाते हैं। माशरे में इखलाकी और बुराइयाँ परवान चढ़ने लगती हैं। बेकार रहना शैतान का काम है। अपनी सलाहियतों को अच्छी जगहों पर सर्व करें। मिसाल के तौर पर जब हम फारिग रहते हैं तो हम ये सोचते रहते हैं कि फ़लाँ शख्स ने हमें फ़लाँ वक्त पर ये बात कही थी, तो हमें गुस्सा आता है, हम नेगेटिविटी में पढ़ते जाते हैं, हम लोगों की बुराइयों को सोचते हैं, हम जब हम फारिग होते हैं। लेकिन जब हम एक मसरूफ़ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं तो हमें इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, या उन्होंने कुछ अच्छा कोई फ़लाँ बात अच्छी तरीके से नहीं की, फ़लाँ जगह पे हमें हमारे साथ अच्छा बिहेव क्यों नहीं किया। चूँकि हम अपनी ज़िंदगी के मकसद को पाने में इतने मसरूफ़ होते हैं कि छोटी छोटी बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। इसलिए हम बड़े मकसद को पाने के लिए मसरूफ़ होते हैं, उस मकसद को जिससे हमारी इंफरादी ही कामयाबी नहीं होती बल्कि एक मुआशरती और इज्तिमाई कामयाबी उसमें छुपी होती है। तो हमारे पास इन फालतू बातों का वक्त ही नहीं होता और हम कामयाब ज़िंदगी गुजारते हैं। इसी तरह से सैयद अहमद खान कहते हैं, जब हम फारिग होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस वक्त के मुसलमान भी चूँकि बेकार पड़े हुए थे, फिर क्या होता है, इंसान कमारबाजी की तरफ, जुआ खेलने की तरफ लग जाता है, खामखा उठता बैठता खाता पीता है, उसकी आदत जो है वो बिल्कुल वहशियों की तरह हो जाती हैं। वो तमाशबीनी का जो है वो आदी हो जाता है, उसको अपनी तारीफ़ करवाना और बेकार बैठे रहना अच्छा लगता है, उसकी सलाहियतें दब जाती हैं। उसकी जब सलाहियतें दब जाती हैं तो क्या होता है कि वो अपने आप को, जो सलाहियतें उसमें नहीं हैं, वो खूबियाँ वो अपने अंदर जो है वो समझता है कि वो खूबियाँ उसके अंदर हैं जो उसके अंदर नहीं होती। वो गफलत में पड़ा रहता है और वो एक तरक्की पजीर और बद तहजीब मुआशरे के फ़रोग़ का सबब बनता है। तो सैयद अहमद खान ने कहा कि चूँकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें वहशियानापन की सिर्फ अपने अंदर पैदा नहीं करनी, हमें कायली और सुस्ती को छोड़ना है, अपने दिली कुआ को बेदार करना है, उन ताकतों को, सलाहियतों को बरूए कार लाना है और एक तहजीब याफ्ता वज़ादार इंसान बनना है। ठीक है, हमें गैर महज़ब और पहवाड़ बदसलीका वहशी इंसान नहीं बनना। पहवाड़ से मुराद यहाँ पर जाहिल, बदसलीका या गैर महज़ब ही इंसान लिया गया है। अब सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि जैसे कि बरसगीर पाक हिंद में अंग्रेज़ आए, अंग्रेज़ों ने यहाँ पर आकर हुकूमत कर ली, हिंदू और मुसलमान एक बहुत बड़ी तादाद में कौम थी, उन पर आकर वो हाकिम बन गए। अगर वो भी अपने दिली कुआ को छोड़ दें तो वो भी बिल्कुल हमारी तरह के बेकार इंसान बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सोचा समझा। जब कोई अपनी सलाहियतों को बुरे कार लाता है तो उसमें सोचने समझने की सलाहियत बढ़ जाती है। जब वो सोचता समझता है तो वो अपने कॉज की कामयाबी की तरफ बढ़ता है, अपने मकसद को पाने की तरफ बढ़ता है। तो इसी तरह से सैयद अहमद खान कहते हैं, आज अंग्रेज़ क्यों कामयाब हैं, हम क्यों अपनी किसी बात में अंग्रेज़ माशरत का हवाला देते हैं कि अंग्रेज़ों का माशरा बहुत अच्छा माशरा है। क्यों हम ये मिसाल देते हैं? हम इसलिए मिसाल देते हैं कि वो सोचते हैं समझते हैं, वो बेकार नहीं बैठे रहते। आप देखिए वहाँ के बच्चे बूढ़े जवान, हर इंसान मेहनत करता है, कमाता है, अपने हाथों से कमाता है, मेहनत करता है। हमें मेहनत करना है, बेकार रहना छोड़ना है, काहली और सुस्ती को छोड़ना है, हमें अपने हाथ पैर को हिलाना है, तो हम भी उन जैसे ही महज़ब बन सकते हैं। हमारा मुसलमानों की तो जो रवायात थी वो बहुत महज़ब कौम से ताल्लुक़ रखते थे। हमारी रवायात ये थी कि हम बहुत वज़ादार थे, बहुत तहज़ीब याफ्ता माशरत थी हमारी, हम तो हुक्मरान थे, हमने पूरी दुनिया पर हुक्मरानी की, हम मुसलसल कोशिश और जिद्दोजहद करने वाले थे, हम मुश्किलों मुसीबतों परेशानियों से नहीं घबराते थे। लेकिन जब हम बेकार पड़ गए, हम सुस्ती और काहली में पड़ गए, हमने अपने दिली कुआ को बेकार छोड़ दिया, तो हम वहशी और बिल्कुल बदसलीका इंसान बन गए। तो हमें उस वहशीपन की सिफ्त से निकलना है, हमें एक महज़ब और तहज़ीब याफ्ता इंसान बनना है। सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि हमें ये सोचना चाहिए कि हमें तरक्की करने के मौके क्यों नहीं है। हम सिर्फ इसलिए काहिल और बेकार सुस्त बनकर नहीं रह सकते कि हमारे पास मौके नहीं है मेहनत करने के। तो हमने उन मौक़ों के बारे में सोचना है कि हमें वो मौके कैसे हासिल करने हैं। जब हम सोचेंगे समझेंगे, अपनी सलाहियतों को पूरे कार लाएंगे तो सारे रास्ते
रास्ते हमारे सामने क्लियर होते जाएंगे और हम अपनी मंजिल की कामयाबी तक पहुंचेंगे, हम एक तहसीब याफ्ता माशरत का सबक बनेंगे। तो सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि हम अपनी तमाम ज़रूरियात की इंजाम करने की फ़िक्र और मुस्तैदी रहना चाहिए, हमें चुस्त होशियार रहना चाहिए, हर वक्त हमें मुस्तैद रहना चाहिए, हर काम के लिए तैयार रहना चाहिए, मुश्किलों परेशानियों से निपटने के लिए हमें अपने आप को तैयार रखना चाहिए, हमें अपने आप को सुस्ती और काहली से बाहर निकालना चाहिए। हमारी कौन से काहली यानी दिल को बेकार पड़ा रखना ना छूटेगा, उस वक्त तक हमको अपनी कौम की बेहतरी की तवक्को कुछ नहीं है। सर सैयद अहमद खान कहते हैं जब तक हमारी कौम, अब आप ये देखें कि सर सैयद अहमद खान ने उस दौर में, आज से कई साल पहले, 72 साल पाकिस्तान को बने हुए हो गए, ये 1857 के बाद के हालात के वाक़यात हैं, जब कि सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को ये तरगीब देने की कोशिश की कि आप उठें, जाके मेहनत करें, सुस्ती और काहली को छोड़ दें, तभी आप एक बेहतर कौम बन सकते हैं, नहीं तो आप एक बेहतर कौम नहीं बन सकते, आपके माशरे में इज्जत नहीं होगी, आप महकूम ही रहेंगे, आप कभी भी गालिब या हुक्मरान नहीं बन सकते। तो आप ये देखें कि एक अच्छी तहरीर का खूबी ये होती है कि ये ना सिर्फ उस दौर के लोगों के लिए एक मैसेज है, बल्कि आज के दौर के हालात, आज के दौर में भी और आज के हालात के तनाजुर में भी आप देखें तो ये आज भी उतनी ही इफेक्टिव है, इसकी अहमियत आज भी उतनी है। आप देखें किसी भी माशरे में देखें काहली और सुस्ती जो है वो एक बुराई है, ठीक है। ये किसी तहरीर की खसूसियत ये होती है कि वो किसी एक माशरे के लिए नहीं होती, बल्कि वो यूनिवर्सल होती है, वो तमाम माशरों पर लागू होती है, ये उस जो है तहरीर की सिफ्त होती है। तो हमारे इस तहरीर के जो मुसन्निफ है सर सैयद अहमद खान, उन्होंने जो टॉपिक लिया है वो किसी एक माशरे, किसी एक फर्द के लिए नहीं, किसी एक कौम के लिए नहीं है, बल्कि ये तमाम दुनिया के लोगों के लिए एक मैसेज है कि अगर हम तरक्की और कामयाबी चाहते हैं तो हमें काहली और सुस्ती को छोड़ना होगा। और ख़ास तौर पे ये उस वक्त मुसलमानों के लिए मैसेज था और अब भी ये ख़ास तौर पे मुसलमानों के लिए मैसेज है। आप देखिए दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा तरक्की पजीर कौम मुसलमान है, मुसलमान ही पस्ती के गड़े में गिरे हुए हैं, क्योंकि मुसलमान जो हैं वो अपने दिली दुआ को बेकार छोड़ कर बैठे हुए हैं, वो मेहनत नहीं करते। बहैसियत अगर स्टूडेंट आप देखें तो आप मेहनत नहीं करते। आप देखें कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट बहुत कम है, क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं, हम अपनी सलाहियतों को बेकार नहीं लाते। हम हमारा चूँकि आज इंटरनेट का दौर है, हम हमारी बुनियादी ज़रूरियात क्या हैं कि हम उससे कुछ अच्छी चीज़ें सीखें। आज के जदीद दौर के तकाज़े हमें ये कहते हैं कि हम इंटरनेट से जदीद दौर की उन चीज़ों को लें जिससे हम एक तरक्की याफ्ता कौम बने, जबकि हम काहिल और सुस्त हैं, हम सिर्फ उनसे वो चीज़ें लेते हैं जिनको बैठ के हम देखते रहे, हम सिर्फ उस पर से चीज़ें देखते हैं, उन चीज़ों पर रिसर्च नहीं करते। हमें जब हम उन चीज़ों को तरक्की याफ्ता चीज़ों को देखते हैं, खासतौर पे इंटरनेट है जैसे, तो हमें उससे क्या करना है, हमें उससे चीज़ों को देख के उनको सोचना है, उनको परखना है, उन पर रिसर्च करनी है और बहैसियत तालिब इल्म आपको पढ़ना है, अपनी पढ़ाई में मेहनत करनी है। उसको मेहनत के लिए आपको बेकार और सुस्त नहीं रहना, सिर्फ आपको सिलेबस तक महदूद नहीं रहना। उसके लिए आपके लिए काहली और सुस्ती क्या है कि आपने एक चैप्टर निकाला, पढ़ा और उसकी ई बुक को पढ़ा और चैप्टर रेडी कर दिया, ये आपकी काहली और सुस्ती है। आपके पास इतने ज़्यादा मौके हैं, हम बहुत जदीद दौर में दाखिल हो चुके हैं, हमें जदीद दौर के तकाज़ों से हम अहम होना है कामयाबी और तरक्की के लिए। हमें अपने मुख्तलिफ टॉपिक्स को आप इंटरनेट पर सर्च करें, उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करें। जब आपके पास मालूमात ज़्यादा होंगी, मालूमात के सोर्सेज ज़्यादा होंगे, तो आपके पास मौत ज़्यादा होगा। जब आपके पास मौत ज़्यादा होगा तो आपके पास बोलने और लिखने के लिए बहुत कुछ होगा। जब आप बहुत अच्छा बोलेंगे और लिखेंगे तो आपके नंबर अच्छे आएंगे और आपकी मालूमात में इजाफा होगा, आपकी तालीमी इस्तेदाद काबिलियत बढ़ेगी, तो ही आप तरक्की याफ्ता कौम का बाइस बनेंगे। तभी हम अपना मुआवजा तरक्की याफ्ता कौमों से करेंगे जब हम एक अच्छी एजुकेशन हासिल करेंगे। मतलब ये कि हमें काहली और सुस्ती को छोड़ना है। आपकी सबक भी बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम अपने सवालों जो आपकी तरफ चलेंगे। हमारा सवाल नंबर 1 है, सर सैयद अहमद खान का तारुफ करवाएं। सर सैयद अहमद खान कौन है? जब हम उनका मजमून पढ़ेंगे तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि मजमून के लिखने वाला मुसन्निफ कौन है और उन्होंने ये मजमून क्यों लिखा। जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, वो नज़्म हो, गज़ल हो, नसर का कोई टुकड़ा हो, तो हमें उसके बारे में पढ़ने से पहले हमें ये सोचना है कि इसका मकसद क्या है। कोई भी चीज़ मकसद के बगैर नहीं लिखी गई। खास तौर पर सर सैयद अहमद खान ने जो तहरीक चलाई उसमें उसके तहत जो भी लिखा गया उसका एक मकसद था। और सर सैयद अहमद खान जो है उन्होंने अलीगढ़ अदारा एक कायम किया, जिसमें कि उन्होंने उर्दू ज़बान को एक सादा और सलीस
زبان کے طور پر متعارف کروایا. ان کی بہت ادبی اور انہوں نے اردو زبان کو ایک ادبی زبان کی حیثیت دی اور اس کو ایک معیاری زبان کے طور پر ہمیں متعارف کروایا. جیسا کہ آپ نے سبق کے شروع میں سر سید احمد خان کے بارے میں انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ سر سید احمد خان کا اردو زبان پر بہت احسان ہے. انہوں نے زبان کو پستی سے نکالا, اندازہ بیان میں سادگی کے ساتھ وسعت پیدا کی. سادگی تو پیدا کی, وسعت کیا پیدا کی کہ ہر قسم کے, وہ چاہے سنجیدہ مضامین تھے یا وہ جدید علوم تھے, ان کے بارے میں بھی لکھا اور بے لاگ تنقید و روشن خیالی سے اردو ادب میں انقلاب برپا کر دیا. چاہے وہ مذہب کے حوالے سے مضامین تھے یا وہ جدید علوم کے حوالے سے مضامین تھے, تنقیدی یا فکری مضامین تھے یا سنجیدہ مضامین, ہر طرح کے مضامین کے بارے میں لکھا گیا. مطلب انہوں نے اردو زبان کو ایک ادبی زبان وہ ہوتی ہے مسلم, کسی بھی زبان کی حیثیت اس وقت تسلیم کی جاتی ہے جب اس میں زندگی کے ہر طرح کے ہمیں پہلو کے بارے میں لکھا ہوا مواد ملتا ہے. ٹھیک ہے, تو سر سید احمد خان ہمارے قوم تھے کیونکہ انہوں نے ایک تو اردو زبان کو ایک مرتبہ عطا کیا, پھر انہوں نے کیا کیا کہ ہماری مسلم قوم کو جگایا, غفلت سے جگایا اور ان میں ایک تحریک پیدا کی, حرکت پیدا کی, ان کو جھنجھوڑا, عمل کی طرف ان کو لے کر آئے. سر سید احمد خان نے تہذیب الاخلاق ایک رسالہ نکالا جس میں طرح طرح کے ہر طرح کے مضامین لکھے جاتے جن کا مقصد فلاح اور اصلاح تھا. سر سید احمد خان کو جب ہم ان کا تعارف بیان کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان ایک مصلح تھے, مطلب وہ ایک اصلاح کرنے والے تھے. انہوں نے ادب کو ایک مقصد کے تحت تحریر کیا, انہوں نے با مقصد ادب تحریر کیا. سوال نمبر 2 ہے قائلی کے لفظی و اصطلاحی معنی. لفظی معنی قائلی کے ہے سستی. ٹھیک ہے, سستی سے مراد یہ ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے میں دیر کرنا, سستی. جبکہ اصطلاح میں ہم کیا کہیں گے کہ اپنے اصطلاح میں قائلی کے معنی یہ ہے کہ بیکار پڑے رہنا. ٹھیک ہے, بیکار پڑے رہنا اس کے اصطلاحی معنی ہے. سوال نمبر 3 ہے امت مسلمہ کے زوال کا اہم سبب کیا ہے. امت مسلمہ کے زوال کا اہم سبب کاہلی ہے. آپ یہ مضمون لکھا ہی اس لیے کی گیا کہ یہ نہ صرف اس دور کی امت مسلمہ بلکہ آج کے دور کی بھی امت جو ہے مسلم امہ ہے, یہ اس کے حالات پر بالکل پورا اترتا ہے کہ آج بھی مسلمان زوال پذیر ہیں. اس دور میں جب یہ لکھی گئی تب بھی مسلمان زوال پذیر تھے. اس وقت سر سید احمد خان نے کہا کہ مسلمانوں کے زوال کا اہم سبب بیکار پڑے رہنا ہے, سستی اور کاہلی ہے. کاہلی کو چھوڑے, حرکت کریں, عمل سے زندگی ہے. عمل کی طرف آئیں, جب آپ عمل کریں گے, اپنے ہاتھ پیر ہلائیں گے, کوشش کریں گے, جد و جہد کریں گے, تو ہی آپ ایک تہذیب یافتہ معاشرت کے طور پر ابھریں گے, ایک تہذیب یافتہ قوم کے طور پر ابھریں گے اور دنیا میں آپ کی عزت و نام ہوگا. تو امت مسلمہ کے زوال کا ایک اہم سبب کاہلی ہے. بالکل اس طرح یہ آج کے دور کے مسلمانوں کے لیے بھی ایک اہم سبب ہے. سوال نمبر 4 ہے مضمون نویسی کے بارے میں بتائیں کہ مضمون کسے کہتے ہیں. سر سید احمد خان نے مضمون نویسی کی روایت ڈالی. اب آپ دیکھیں مضمون کہتے کسے ہیں. ایک مضمون میں نہ تو کہانی ہوتی ہے اور نہ ہی ہم اپنے خیالات و جذبات کا اظہار کرتے ہیں, جبکہ مضمون میں ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم سنجیدہ مضامین لیتے ہیں جن میں ہم جو بھی کوئی موضوع لیتے ہیں اس سے متعلقہ مواد اکٹھا کرتے ہیں اور مضمون لکھتے ہیں. اس پہ ہم نے مضمون میں ہم کیا کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم مضمون کا تعارف بیان کرتے ہیں, پھر اس کے حق میں دلائل دیتے ہیں اور پھر اس کے اینڈ پر ہم اس کے فوائد بیان کرتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم دیکھیں کہ انٹرنیٹ کے فوائد پر مضمون لکھیں تو ہم سب سے پہلے کیا کریں گے کہ انٹرنیٹ ہے کیا. مضمون نویسی ہم کس طرح سے کرتے ہیں, مضمون اس طرح سے لکھتے ہیں. مثال کے طور پر ہم نے ایک ٹاپک لیا کہ انٹرنیٹ کے فوائد کیا ہیں, تو کیا ہوگا کہ سب سے پہلے ہم لکھیں گے کہ انٹرنیٹ ہے کیا. پہلے ہم عنوان کے بارے میں بتائیں گے کہ ہم نے جو بھی عنوان رکھا ہے اس کے بارے میں کچھ لائنیں لکھیں گے. مثال کے طور پر انٹرنیٹ کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو ہم لکھیں گے کہ انٹرنیٹ دراصل ہے کیا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم لکھیں گے کہ انٹرنیٹ نے ہماری زندگی پر کیا اثرات مرتب کیے, وہ لکھیں گے. اس کے بعد ہم لکھیں گے کہ انٹرنیٹ کے فائدے کیا ہیں, پھر ہم انٹرنیٹ کے فائدے لکھیں گے. اور جب ہم انٹرنیٹ کو متعارف کروا چکے, پھر ہم نے اس کے اپنی زندگی پر اثرات لکھے, پھر اس کے فائدے لکھے اور اینڈ پر ہم لکھیں گے کہ فائدوں کے ساتھ ساتھ اس کے کچھ نقصانات بھی ہیں. پھر ہم
اس کا اجتماعی جو اس کے فائدے اور نقصانات ہیں وہ بیان کریں گے اور اینڈ پہ اپنے مضمون کو سمیٹیں گے۔ سب سے پہلے ہم مضمون کا جو عنوان ہے اس کی تمہید باندھیں گے، پھر اس کا تعارف لکھیں گے، پھر اس کے فوائد لکھیں گے اور اینڈ پر اس کے اثرات جو ہیں اچھے اور برے دونوں بیان کریں گے۔ اسے کہتے ہیں مضمون نویسی۔ اب سوال نمبر 5 ہے بامقصد ادب یا ادب میں مقصدیت سے کیا مراد ہے؟ ادب میں مقصدیت سے مراد یہ ہے کہ ادب کیا ہے؟ ادب ہمارے معاشرے کی، ہماری معاشرت ہمارا ادب ہے، ہمارا رہنا سہنا، ہماری رسم و رواج، ہمارا زندگی گزارنے کے طریقے ہمارا ادب ہے۔ ادب میں یہی ہوتا ہے نا، نظم کہانی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس میں واقعات ہوتے ہیں، تو ہمارے روزمرہ معمول کے جو واقعات ہیں وہ ہیں ہمارا ادب کہلاتے ہیں۔ تو چونکہ مسلمانوں کے پاس جو اس وقت پاکستان برصغیر پاک و ہند میں جو مسلمان تھے ان کی زبان اردو تھی، تو ان کے ادب میں اس وقت زیادہ تر مضامین جو تھے وہ غزل کے حوالے سے تھے، عشق و عاشقی کے مضامین تھے، اور اس کے علاوہ قصائد اور اس طرح کی دوسری چیزیں تھیں، ٹھیک ہے۔ جو خاص سنجیدہ مضامین تھے ان کے بارے میں بہت کم لکھا گیا تھا۔ سر سید احمد خان جب آئے، انہوں نے جب اپنی قوم کی اجتماعی حالت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ جو ادب ہوتا ہے، جب ہم کسی چیز کو پڑھتے ہیں تو وہ ہمارے ذہن پر اثر رکھتی ہے، جب کوئی چیز ہم پر اثر کرتی ہے تو ہم اس چیز کے بارے میں سوچتے ہیں، اس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم عمل کرتے ہیں، مطلب جب ہم کاہلی سستی کو چھوڑتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنے مقصد کی جانب بڑھتے ہیں، اور جب ہم اپنے مقصد کے لیے کوشش کرتے ہیں تو کامیابی ہمارا مقدر بنتی ہے۔ تو ادب، بامقصد ادب یہ ہے کہ ایسی چیزیں، ایسی تحریریں لکھی جائیں جن میں کوئی اخلاقی بحث کی جائے، جن میں عوام کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے اخلاقیات کے موضوعات ہوں، جن میں انہیں کوئی اخلاقی، روحانی، دینی، مذہبی سبق دیا جائے۔ اور بامقصد ادب وہ تھا ایسی تحریریں تھی جن کو پڑھ کے ہمیں فائدہ ہو، ٹھیک ہے۔ مطلب اس وقت اردو زبان میں جدید علوم کے بارے میں نہیں بیان کیا گیا تھا، بہت سے اہم خاص قسم کے عنوانات ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ عموماً جو ہے وہ قصے کہانیاں بیان کی جاتی تھیں۔ تو جب سر سید احمد خان آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں سنجیدہ مضامین لکھنے ہیں، ہمیں ایسا ادب تحریر کرنا ہے جس کو پڑھ کے لوگ میسج دیں، حرکت اور عمل پر آمادہ ہوں۔ تو وہ ایسا ادب ہے جو بامقصد ادب ہے۔ جیسے کہ ہم نے حالی کے بارے میں پڑھا کہ حالی نے مد و جزر اسلام لکھی تاکہ مسلمانوں کو جھنجھوڑا جائے، ان کے اخلاق کے بارے میں بتایا جائے، وہ بامقصد ادب تھا۔ اسی طرح حالی نے یادگار غالب لکھی اور حیات جاوید لکھی، سر سید احمد خان کے بارے میں لکھی، مختلف شخصیات کی زندگی کے بارے میں لکھا تاکہ ان کے بارے میں بتا کے قوم کو تہذیب یافتہ کیا جائے۔ یہ ہے بامقصد ادب، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ سر سید احمد خان کی تحریک کے مختلف لوگوں کو پڑھیں تو آپ دیکھیں جیسے ڈپٹی نذیر احمد تھے، انہوں نے بھی جو میراث العروس لکھی اور توبۃ النصوح لکھی اور جو بھی لکھی ان سب میں میسج دیا گیا تھا۔ سر سید احمد خان نے جو تحریک چلائی جس میں ادب تحریر کیا گیا، جو خواہ وہ نظم تھی یا وہ نثر تھی، اس میں اس بات کو مد نظر رکھا گیا کہ ہمیں ایسی تحریک لکھنی ہے جس سے کوئی میسج ملے، جس سے کوئی فلاح کا کام ہو، جس سے قوم کی اصلاح ہو، اس کو کہتے ہیں بامقصد ادب۔ اب ہم نے کاہلی کا یہ مضمون پڑھا اور آپ کو سوال جواب بھی یقیناً سارے سمجھ آ گئے ہوں گے، آپ کو بہت اچھے سے پتہ چل گیا ہوگا کہ کاہلی دراصل کیا ہے۔ کاہلی نہ صرف یہ ہے کہ ہم سستی کا شکار ہوں، بلکہ اپنے دلی گوا کو بیکار چھوڑ دینا بھی کاہلی ہے۔ ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بیکار لانا چاہیے، تبھی ہم ایک تہذیب یافتہ معاشرہ بن کر بڑھ سکتے ہیں اور دنیا میں کامیابی اور عزت پا سکتے ہیں۔ ہمارا یہ چیپٹر یہاں پہ ختم ہوا، نیکسٹ چیپٹر ہم کل پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔